everyone, welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Chauhan and I'm back with another video जहां पर IBMAT इंदौर वर्बल एबिलिटी एग्जाम लास्ट 3 इयर्स का क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, कैसा वेटेज रहा है एंड कैसे वो डिवाइडेड रही हैं चीजें बिटवीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड योर ग्रामर skills. So here I am with this session for you guys. A lot of times this happens कि यार we plan to prepare for an examination but we have no idea about what was there in the previous year and what was the trend that was followed. इसी चक्कर में हम ये गलतियां कर जाते हैं कि पढ़ते तो जा रहे हैं सर, मैंने सारी बुक्स लगा दी, सारा प्रेप कर लिया, बट you have no idea about the previous year papers. So I think that is not the smartest way of approaching an examination. What I would say before trying to appear for any exam, it is highly advisable कि आप पहले papers का एक अच्छा खासा idea लेके चलो कि exam का trend कैसा रहा है. That helps you anticipate कि what to expect in the upcoming examinations. So let's begin with things. And सबसे पहले अगेन ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो आप. यू कम टू मी एंड यू से कि सर मैंने नरेशन कर लिया है, वॉइस कर लिया है, बट हेलो, जब आप सिलेबस देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार लास्ट 3 इयर्स में नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस ही नहीं है, या कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे बट एग्जाम में नहीं था. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक्स अराउंड विच योर सिलेबस रिवॉल्व्स. Reading comprehension, you can never underestimate the importance of reading comprehension. And seeing what the trend has been over the last 3 years, reading comprehension ka weightage har saal it is increasing, and also the difficulty level is also going north. Then we have grammar skills, something that I would say quite easy, quite doable. Still गलतियां हो रही हैं, आई थिंक क्योंकि हमारा अप्रोच गलत है या ग्रामर के हमारे फंडे क्लियर नहीं है. बट फिर से कहूंगा एक ऐसा टॉपिक जो डुएबल है और जो आपके बेस्ट टॉपिक्स में से होना चाहिए कि यार ग्रामर का क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए. देन वी हैव वोकैबुलरी स्किल्स, another Achilles heel for a lot of students कि यार वोकैबुलरी सर बहुत पढ़ रहे हैं. ट्रस्ट मी, आप एग्जाम ट्रेंड देखो, आप वोकैबुलरी के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के देखो, एग्जामिनर आपसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं पूछ रहा है. Now, vocabulary skills, I would still say, are doable as far as idioms are concerned, या one word substitution, phrasal verbs. एक दो एग्जाम को अगर मैं एक दो phrasal verbs को छोड़ दूं, I would say ऐसे कोई phrasal verbs नहीं है. जो एक general phrasal verbs की एक लिस्ट होती है of around 100 to 120 phrasal verbs, उन्हीं चीजों के अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं. Then we have word usage. Now, this is something which is very important, because there are certain words that are used in multiple places and they have different meanings as well. So word usage important क्यों हो जाता है? Here comes the importance of reading newspapers as well. सिर्फ word पढ़ लेना, उसका meaning पढ़ लेना, उसके sentences बना लेना, that is not the entire thing. different context में वो word किस तरीके से use हो रहा है, I think that is important. तो word usage में जो words होते हैं वो words difficult नहीं होते हैं, बट आप उनके यूजेज में गलतियां कर जाते हो. सो दैट इज व्हाट वर्ड यूजेज इज. नेक्स्ट अप वी हैव पैरा कंप्लीशन. नाउ फॉर पैरा कंप्लीशन स्टूडेंट्स हैव मिक्स्ड रिएक्शंस. सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर पैरा कंप्लीशन इट्स नॉट अ बिग डील, पैरा कंप्लीशन हम कर लेते हैं. देन देयर आर स्टूडेंट्स हु बिलीव पैरा कंप्लीशन इज इजी, बट व्हेन इट कम्स टू द मॉक्स वो 100% स्कोर नहीं कर पा रहे. एंड देयर इज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स दैट बिलीव्स कि सर पैरा कंप्लीशन तो डिफिकल्ट है. If you are to take my word, अगर para completion में exam में if there are 4 questions, you should back yourself to do at least 2 or 3, if not all. Sentence completion, it's a bit obsolete term because 2022 के पेपर में yes there were questions from sentence completion, but as the difficulty level has raised, so what has happened कि 2023 2024 में para completion के questions थे and sentence completion has become obsolete from your exam. Then we have sentence rearrangement aka para jumbles, 5 questions. Now if you are to take my word, I would say yes, पूरे आपके exam syllabus में if there is something that you can categorize in the hard category,
कि सर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यू कैन से यस, sentence rearrangement aka para jumbles, they can be a bit difficult at times, but then again I will not say कि यार इसको छोड़ के ही आ जाना है. Again there are tips and tricks to help you guys out. And then fillers, quite interesting topic, because if going by the trend, I think fillers, there are grammar based fillers, and then there are vocabulary based fillers. Vocabulary based fillers can be challenging at times, can be relatively easier as well, because words का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है. But there are again some questions, or the trend that I have seen in the last 2 years, questions में जो words हैं वो मुश्किल नहीं है, but word usage एक problem students हमेशा face करते हैं, और एग्जाम के बाद आके बोलते हैं कि सर फिलर्स के क्वेश्चन गलत हो गए. और ऐसा सुन के मतलब आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो एक ऐसा एरिया था जहां पर आपको अच्छा स्कोर करना ही चाहिए था. सो दैट इज हाउ योर सिलेबस लुक्स लाइक. किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले आई थिंक इतनी इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट ट्रेंड हैज बीन देयर ओवर द लास्ट 3 years. सो क्वेश्चन टाइप्स के अराउंड पहले डिस्कशन करते हैं ऑन फॉर ऑल द 3 years. सो इन 2022 the verbal ability section primarily focused on reading comprehension, passage, vocabulary, grammar. There was a shift towards conceptual understanding of vocabulary questions. What I mean by that is कि ऐसा नहीं कि एक वर्ड आ गया और आपसे पूछ लिया इसका सिनोनिम बता दो या इसका एंटोनिम बता दो, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर यूज कर पा रहे हो या नहीं. that was being tested in 2022. Inferential RC question, inferential reading. कम ऑन, अगर आप आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो और इन्फरेंशियल रीडिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में जाके अगर एक पैसेज पे देयर आर 6 क्वेश्चंस, आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप इन्फरेंशियल रीडिंग नहीं कर रहे हो. तो नेक्स्ट अप वी हैव आरसी. जैसे कह रहे हैं द प्रोपोर्शन ऑफ आरसी वाज स्लाइटली हायर, एंड ये बात will become a platitude remark by the end of today's session, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज पर emphasize करूंगा कि RCs, vocabulary, contextual, but when it comes to grammar skills, I would still say एक ऐसा एरिया है जो आप जहां पर आपको 100% accuracy aim करना चाहिए. Again, 2023, they say कि यार similar structure was observed, RC dominating the section. However, there was an increase in critical reasoning and inferential questions based on inference, assumption. ये सारी चीजों पर ज्यादा emphasis था. Pushing candidates to interpret ideas and arguments. Vocabulary questions included synonyms, antonyms, contextual usage. Vocabulary में एक ही चीज है जो अगर मैं पूरे पेपर के एनालिसिस से समझ पाया कि contextual usage पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, and not just about learning the words or making n number of notes कि सर मैंने अपने notes में 1000 words लिख लिए हैं और 1500 words लिख लिए हैं. See, it doesn't matter as long as वो words आपके copy में ही हैं. What I expect is कि वो words बिल्कुल 3D में उठ के यहाँ पे जा रहे हैं, तब मजा है, और जब टाइम आए तब आप उसे यूज कर पा रहे हो या नहीं. That is also a bigger challenge. Coming to 2024, this year's paper, balanced approach between RC, grammar and vocabulary questions. More CR and inference based questions were included. Again, vocabulary included word usage, analogies and idiomatic expressions, making the VA sections more nuanced. It was more subtle. Changes थे, but ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे इतने अच्छे तरीके से कि यार लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या चेंज किया है. बट हाँ, there were some minute changes in the pattern. So question types का discussion हम कर चुके हैं. Now the main thing, difficulty level. Now as students, you guys must be like कि सर difficulty level जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है. हमारे लिए तो सारे पेपर्स हार्ड वाले कैटेगरी में ही हम रखेंगे. But I disagree with that. मैं सारे पेपर्स को मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा because I believe everything was doable. पैरा जम्बल्स सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अगर मैं बोलूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वहां पे 100% एक्यूरेसी आप नहीं भी कर पा रहे थे, ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्ड यूजेज, पैरा कंप्लीशन, आरसीज एज वेल, दे वर डूएबल.
अब यहाँ पर बात आ जाएगी टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. Let's talk about the difficulty level of the exam. So the verbal ability section has a moderate level of difficulty. ठीक है. RC questions were moderately complex, grammar was straightforward, but required attention to detail. So grammar questions में if you are not giving attention to detail, how can you expect कि आप grammar में अच्छा कर पाएंगे? जो भी आपने पढ़ा है, when I say grammar, I mean those 8 to 10 topics that include verbs, modal verbs, subject verb agreement, tenses, all parts of speech, parallelism, ये सारी चीजें. 8 to 10 टॉपिक्स में अगर मैं जनरलाइज करने जाऊं तो आई वुड से देयर आर 100 और 120 ग्रामर रूल्स. 100 और 120 इज नॉट अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट. और उन्हीं रूल्स के अराउंड आप लास्ट पेपर्स उठाकर देखिए, उन्हीं रूल्स के अराउंड सारे सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द ग्रामर सेक्शन वाज. 2023 में डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली इंक्रीज, एंड ये स्लाइटली इंक्रीज बोलते बोलते ये लेवल अब ऊपर ही जाना है स्टूडेंट्स, ये लेवल नीचे नहीं आएगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन ईजियर पेपर इन द अपकमिंग ईयर्स, से 2025 और 2026. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. बट ये स्लाइट इंक्रीज है, ये बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है. स्लाइट इंक्रीज है तो आप भी अपने परफॉर्मेंस में स्लाइट इंक्रीज कर सकते हो, डुएबल है अभी भी. So RC passages became denser, focusing more on abstract ideas, higher comprehension level. Vocabulary questions were challenging with less common words and phrases. Why they were less common words and phrases? Why do we believe? क्योंकि बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं रहे. And like I always say कि यार ये word देखो, कुछ out of the box आ जाता है, that is beyond your control. But जो words market में चल रहे हैं, When I say मार्केट में चल रहे हैं, आई मीन कभी आपके एग्जाम में, कभी किसी और एग्जाम में, 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर किसी दूसरे एग्जाम में भी वो वर्ड आ रहा है तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा हो चुका है. आप इग्नोरेंस में क्यों थे? आपने वो वर्ड क्यों नहीं पढ़ा? आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज इस तरीके के वर्ड्स प्रीवियस ईयर में नहीं थे तो आगे नहीं होंगे. यू कैन नॉट डू दैट. एंड 2024 पीक्ड इन डिफिकल्टी फॉर वीए. हाँ, जिन बच्चों ने 2024 में पेपर दिया होगा, दे वुड अग्री कि हाँ सर, मुझे भी लगा कि एग्जाम टफ था. पर्सनली मुझे एग्जाम टफ नहीं लगा, नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट एज वेल. आई वुड से इतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था. RC passages were not only longer but also more contextually rich, often dealing with philosophical and literary themes. Grammar questions were tricky yet doable. कि डुएबल, नाउ दिस हैज बिकम क्लीशेड, कई बार बोल चुका हूं सेशन में, आगे और भी सुनोगे. ग्रामर की जब जब बात होगी, दिस इज समथिंग दैट आई विल रिपीट कि यार दे वर डुएबल. और आगे भी ग्रामर में बहुत ज्यादा ट्विस्ट कोई नहीं होने वाला है. ग्रामर स्टैटिक है, जितना था उतना ही है, सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है. तो देन अगेन वो चीजें हम मॉक से डेवलप कर सकते हैं. एंड अगेन टेस्टिंग सटल नुआंसेस इन द लैंग्वेज. नाउ इतनी बातों के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एंड हाउ टू स्ट्रैटेजाइज, हाउ टू डिसाइड कि सर ठीक है डिफिकल्टी लेवल को छोड़ते हैं, टाइप्स को छोड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना है. तो क्या आपको एग्जाम में सच में 45 में से 45 क्वेश्चंस करने हैं? डू यू रियली बिलीव दैट? इस बार का वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ कितना था? वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ इस बार था 113. So अगर मैं इसको बोलूं तो आई वुड से 28 करेक्ट क्वेश्चंस, 28 करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 45. चलो 30 ले लेता हूं. 2/3, सिर्फ 2/3 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं. 1/3 क्वेश्चन में आई एम गिविंग यू द लेवरेज कि आप उसे स्किप कर सकते थे, आप छोड़ सकते थे. सो 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 करना बड़ी बात नहीं है. अभी अगर आपको मैं बताऊं, आईपी मैट इंदौर आप अभी 12th के बाद दे रहे हो, आप आगे कोई भी एग्जाम दोगे, आई डोंट थिंक 66% या 2/3 परसेंटेज लाकर, 2/3 फ्रैक्शन करेक्ट करके आप सिलेक्ट हो पाओगे. सो एज यू ग्रो ओल्डर, द डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज, द कट ऑफ्स विल इंक्रीज. तो अभी नहीं तो कभी नहीं, सिंपल एज दैट. नाउ कमिंग टू द ट्रेंड, सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन कॉमन कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या हो रहा है. देयर आर 2 passages of 6 questions each. 2 passages, 6 questions, and what I have seen, passages general passages हैं.
पैसेजेस बहुत टफ नहीं है। एक एप्पल स्टोर के ऊपर एक पैसेज था, एंग्जाइटी के ऊपर पैसेज था। तो ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे आसपास ट्रेंड में चल रहे होते हैं। सो 2 passages of 6 questions each, idioms and phrases, and along with that phrasal verbs as well, contextual पूछे जा रहे हैं, फिलर्स के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, and trust me, they are easy, they are doable. Abhi 7, last year there were 7 questions, and this year as well there were 7 questions. Grammar skill has been consistent. So grammar skills is one of those areas जो मैं चाहता हूं कि आप अपने 30 questions वाली लिस्ट में लेकर आओ। Easy questions हैं, ये आपके 100% accuracy से होने चाहिए। Then I talk about para completion, तो 4, 4, 5. Sentence completion, it has become a bit obsolete क्योंकि sentence completion के questions की जगह अब para completion के questions होते हैं। Fillers, now this is important. Triple fillers 4 थे, फिर 4 fillers 2, and there was 1 single filler. 2023 triple fillers 5 and 1 double filler, and 2024 there were 6 questions from triple fillers. You should aim कि out of these 6 आप 4 तो correct करो ही करो। Again, one of those topics that I believe should be your strongest one. Word usage 6, 6 and 5. Sentence rearrangement 5, 5 and 5. These are TETA questions. इसमें options नहीं होते हैं, but then again you cannot just completely ignore para jumbles and sentence rearrangement. So this is how the pattern has been. If I were in your place, I would say what my aim should be कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं 10 करेक्ट कर लूं एटलीस्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी मैं आपको चलो 2 क्वेश्चंस का लेवरेज दे सकता हूं। ग्रामर स्किल्स में भी चलो 1 क्वेश्चन का लेवरेज दे दिया। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरा कंप्लीशन में आप 3 क्वेश्चंस अगर करेक्ट कर लेते हो, फिलर्स में आप 3 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो, वर्ड यूजेज में आप 2 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो, कैन यू काउंट दैट और शुड आई डू दैट फॉर यू? सो दैट मेक्स इट 27 करेक्ट क्वेश्चन। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। और हर सेक्शन में मैं आपको लेवरेज देकर चल रहा हूं। एग्जाम में आपको तो यही टारगेट करना है कि ग्रामर स्किल्स में आप 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट करो। पैरा कंप्लीशन में मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है 2 छोड़ भी दिए तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दिए एंड रॉन्ग अटेम्प्ट्स, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 28 तो करेक्ट कर लिए, 30 करेक्ट तो कर लिए, बट 15 इनकरेक्ट हो गए सर, अब क्या करें? सो यार आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑनेस्टली। मैं सिर्फ आपको अप्रोचेस दे रहा हूं। नेक्स्ट अप, ओवरऑल ट्रेंड्स एंड टेक अवेज। देख लिया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ चीजें कंसिस्टेंट हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अबाउट से इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शायद 7 थे, 8 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं इन द अपकमिंग ईयर। बट what might change is the pattern or the way in which they are asking you the questions. तो इनकरेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ये चेंजेस होते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट कि इस बार लास्ट ईयर ऐसा था, आगे ऐसा आएगा, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर we can have a fair bit of idea कि यार what to expect, what to anticipate in the upcoming years. So now what are the takeaways? Shift towards analytical questions. So that means there are no direct questions from RCs. Inferential reading और इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा. And as I said, with an increased emphasis on inference, critical reasoning and complex vocabulary. Rising difficulty in RC and vocabulary. Why do we say that the difficulty level is rising? क्योंकि पहली चीज या तो पैसेज लेंदी होगा, अगर पैसेज छोटा है तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होगा, इट वुड नॉट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. Same goes with vocabulary. Vocabulary questions become more challenging each year, pushing candidates to have a well-rounded grasp of language. Passages not only increase in number but also in complexity and inferential depth. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, लाइक डिफरेंट जॉनर्स, डाइवर्सिफाइड रीडिंग. बार बार हम लोग सेशंस में ये चीजें आप लोगों को बताते हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन डू वेल इन आरसी एंड वोकैब. एंड अगेन कॉम्प्रिहेंशन एंड इन्फरेंस पर काफी ज्यादा एम्फेसिस रहा है. एंड की टेक अवेज, हाउ टू डील विद थिंग्स. देन ठीक है सर, प्रॉब्लम की बात कर ली, ट्रेंड्स की बात कर ली, बट व्हाट टू डू व्हेन इट कम्स टू 2025. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है. 2025 में क्या कर सकते हैं, 2026 में क्या कर सकते हैं.
So reading comprehension में आप you can focus on inferential and abstract passages. As RC of course it dominates, तो भाई इसमें मैं यही कहूँगा जितना आप diversified reading करेंगे that will help. Diversified reading का कोई substitute नहीं है. Vocabulary, context, themes, theme based vocabulary, that is something जो मैं classes में आपको बताता हूँ कि यार वो क्या आप idioms पढ़ रहे हो तो animal idiom सारे साथ में लिख लिए, clothing idiom साथ में लिख लिए, food item idiom लिख लिए, color idioms लिख लिए, themes बना बना के पढ़ो, categories बना बना के पढ़ो, vocabulary would become easy for you. Grammar, brush up, that is all we expect from you guys because we know grammar is something जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. What I expect is उसका अच्छे से revision करो, and there is some emphasis on critical reasoning and inference based things. So dear students, that was all for this session. I'll see you guys in another video. Tab tak ke liye, keep practicing, keep revising, and keep learning with a smile on your face. Thank you so much.